A very good morning, guys. Myself Priyanka Rao. Welcome to Rao Biology classes. Today's topic is plasma membrane from class 11th, chapter Cell, the basic unit of life. Let's start my topic, plasma membrane. As we all know that any cells enclosed in a membrane in let's start the any cell कोई भी cell है वो एक membrane से enclosed होता है. This is a membrane. This membrane enclosed in a membrane. So guys, this membrane is called as plasma membrane. So for this plasma membrane there are various terms are used. For example, the plasma membrane first discovered by the scientist called as Swan in 1838. This was the scientist which gives the first time plasma membrane in 1838. Then there is another terms are used for plasma membrane. These terms are called as cell membrane, this term is given by Neckley and Caver in 1855. Okay. Then for the plasma membrane is also known as plasma lemma. This is given by Paul in 1931, and we also call that plasma membrane is a biomembrane. So guys, sometimes in many competitive exams and in many books, these terms is also used in place of plasma membrane. So don't confuse guys. Plasma membrane is also known as cell membrane, plasma lemma and biomembrane, or we call that this is a living membrane. So let's start. As we all know that the plasma membrane surrounding a cell, so this membrane behave as a barrier or act as a barrier. Okay. So we define this term plasma membrane as plasma membrane. It acts as a barrier which separates cell cytoplasm from external environment. Okay. जो सेल है उसको इनक्लोज करती है ये मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसी से ही हम डिफाइन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज एन बैरियर, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. ओके. सो we also thus we say that it is the physical and chemical boundaries or boundary
ऑफ ए सेल। ओके, इसलिए हम इसको किसी भी सेल की फिजिकल और केमिकल बाउंड्री कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ओके, देन वी स्टार्ट्स then the plasma membrane are present in both the cells. It presents in both prokaryotes and eukaryotes, guys. Okay, so जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती है। ओके, इन प्रोकैरियोट्स इट प्रेजेंट एज पेप्टाइडो ग्लाइकेन की फॉर्म में एंड लिपिड पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में। ओके, एंड इन यूकैरियोट्स it presents as lipid bilayer form. Okay, then the plasma membrane, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कंपोजिशन में, और यूकैरियोट सेल्स में किस कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है। ओके, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, द एवरेज थिकनेस जो है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जर्नल स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एक लेयर होती है। ये जो लेयर है इसे हम आउटर बोलेंगे। देन ये मिडल ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट होती है और इट इज एन इनर लेयर। ओके, देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है सेल का, साइटोप्लाज्म। So we say that the plasma membrane जो है ये 1, 2 and 3 layers में present है plasma membrane। So we say that जो plasma membrane है वो ट्राइलैमिनर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ट्राइलैमिनर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक है। सो यहां तक हमने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। ओके, सो गाइस आपने ये समझा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। ये एक बैरियर होता है जो एक्ट एज ए बैरियर की तरह एक्ट करता है, जो साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। देन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन किन चीजों से मिलके बनी होती है। सो वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो जो मेन कंपोजिशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। लिपिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिपिड, देन प्रोटीन, then carbohydrates, okay, and the water content. These are the 4 things by which a plasma membrane are made up of. Okay, so lipid content कितना present होता है, 20 to 75% lipid content होता है। प्रोटीन content 20 to 70% होता है, and carbohydrate 1 to 5% content present होता है। ओके, अब ये दोनों आप देख रहे हैं कि कितने परसेंट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो जो लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं वो मेजर फॉर्म्स होती हैं, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो वाटर है ये है माइनर कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। ओके, सो वी स्टार्ट, हमने ये पढ़ा कि इनकी कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं। अब हम इनको डिटेल में जो मॉडल्स दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए,
उनमें इनकी डिटेल्स पढ़े, किस टाइप से किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, देयर इज सम फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कुछ फीचर्स होती हैं। फीचर्स की क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? फर्स्ट यही था, ये एक्ट एज एन बैरियर, बैरियर की तरह एक्ट करता है। सेकेंड, बैरियर है मीन्स दैट ये प्रोटेक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, एंड बैरियर है मीन्स दैट ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, हर कंपाउंड को तो पास आउट नहीं करवाएंगे, उनके लिए तो परमिएबल नहीं होगा। सो ये जो है सिलेक्टिव कंपाउंड्स के लिए ही परमिएबल होता है, विच मीन्स दैट इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, selectively permeable in nature। किसके लिए permeable होती है? For solutes only। okay, and semi permeable है for water soluble molecules। ओके, ये बैरियर की तरह एक्ट करती है, विच मीन्स दैट ये कुछ सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंटर करे। सो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सोल्यूट्स के लिए, विच मीन्स दैट सम आयंस के लिए, एंड सेमी परमिएबल है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, देन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है सेल सिग्नलिंग में, फंक्शनल होती है, फंक्शनल इन सेल सिग्नलिंग। ओके, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सो दीज रिसेप्टर्स जो होते हैं हेल्प करते हैं सेल की सिग्नलिंग में। ओके, एंड सेल लास्ट फीचर्स क्या बोल सकते हैं इसकी हम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इज नेगेटिव। कैसे होती है? नेगेटिव होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस होती है इनसाइड द सेल। ओके, ये थी इनकी कुछ फीचर्स, ये फिफ्थ थी। फर्स्ट, ये बैरियर की तरह एक्ट करता है क्योंकि कोई भी सेल को एक मेम्ब्रेन क्लोज करती है। एज वी ऑल नो दैट जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये एक्ट एज ए बैरियर की तरह एक्ट करता है, मीन्स दैट प्रोटेक्टिव भी होगा इन नेचर, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होता है कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए ओनली, सेमी परमिएबल होता है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, एंड सेल सिग्नलिंग में भी फंक्शन करता है बिकॉज देयर इज a receptors present on the surface of plasma membrane, which I discuss later on। and the fifth point is that membrane potential जो होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयंस जो होते हैं सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से नेगेटिव आयन, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ओके, सो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए कुछ मॉडल्स दिए गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के दौरान कुछ मॉडल्स दिए गए। देयर आर टू फेमस मॉडल हैं। एक मॉडल है सैंडविच मॉडल, देयर आर टू मॉडल्स, दो मॉडल है। फर्स्ट है सैंडविच मॉडल, एंड सेकेंड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल।
अब इन टू ऑफ दीज मॉडल द मोस्ट फेमस मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल. दिस विल आई डिस्कस इन डिटेल. दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल is given by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson ने दिया 1972 के अंदर. ये जो मॉडल है इसे हम मोजाइक मॉडल भी बोल सकते हैं और फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी. दिस मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. ओके, लेट मी डिस्कस दैट. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फर्स्ट आई एक्सप्लेन, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 के अंदर. अकॉर्डिंग टू हिम जो प्रोटीन्स और लिपिड कंपोजिशन मैंने आपको बताई है, ये जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं होती. लिपिड्स जो होते हैं वो बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, एक तरीके से पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, which later they call that they are the proteins icebergs. Okay, so we discussed in detail the model Singer and Nicholson, the model fluid mosaic model, fluid mosaic model. Okay, this is given by Singer and Nicholson in 1972. Okay, according to this model, जो प्रोटीन्स हैं एंड लिपिड आर नॉट uniformly disperse. Okay, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं होती. जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स आर इन बाइलेयर फॉर्म. लिपिड जो है वो बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, and proteins are in patches. Okay, so later the Singer and Nicholson says that proteins are the icebergs in the sea of lipid. ये क्या होता है कि कोई भी पॉन्ड है, कोई भी सी है, इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन्स प्रेजेंट है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, ये तो सी हो गई, these are stones हो गए. ओके, अकॉर्डिंग टू these जो सी है इट एक्ट एज एन लिपिड की तरह एक्ट करता है, एंड द स्टोन्स एक्ट एज एन प्रोटीन्स. ठीक है, सो this give a structure like that. कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके, और सपोज ये वाला हम हटा देते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट है. ठीक है, और कुछ इस तरीके से बता देते हैं. ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके अंदर लिपिड जो है वो बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट है. ये क्या है? लिपिड. ओके,
ये जो है प्रोटीन्स हैं। अब ये वाली जो प्रोटीन है इसको हम बोलेंगे टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन, ओके। और ये जो प्रोटीन है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन या एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोल सकते हैं टनल प्रोटीन, और इसको हम बोल सकते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ओके, सो प्रोटीन्स जो होती है वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक, दो टाइप की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये मॉडल आपको दिख रहा है ना। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रोटीन्स, अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। कुछ इंट्रेंसिक प्रोटीन इस तरीके से होती हैं कि वो पेनिट्रेट कर जाती है, डिफरेंट डीपैथ के अलोंग पेनिट्रेट करती हैं। जो प्रोटीन बोथ द लेयर्स को क्रॉस कर दे, लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर दे, ठीक है, वो प्रोटीन कहलाती है टनल प्रोटीन। ओके, एंड देयर इज सम एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स। ये जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स है ये प्रेजेंट होती हैं जो लिपिड बायलेयर है उसके एक्सटर्नल साइड पे। ओके, अब ये जो एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हम प्रोटीन्स को ही देख लेते हैं। ये कंपोजिशन को अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो ये प्रोटीन्स हैं ये दो टाइप से प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स। दूसरा है इंट्रेंसिक प्रोटीन्स, इन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो प्रोटीन है इनके एग्जांपल्स आते हैं साइटोक्रोम सी और स्पेक्ट्रिन एंड है एनकायरीन। 1 मिनट, स्पेलिंग चेक कर लेना। होल्ड इट। एनकायरीन, हाँ, एनकायरीन प्रोटीन, दीज आर द इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रोटीन्स के नेम है ये इम्पोर्टेंट है। समटाइम एग्जामिनर आस्क दैट व्हिच आर द एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द lipid bilayer. So these proteins are cytochrome C, spectrin, ankyrin and cupridoxine. बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स किसके एग्जांपल्स हैं? दे आर द फेल्वोप्रोटीन्स, फेल्वोप्रोटीन्स। ओके, एंड देयर इज एन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं इनके एग्जांपल आता है GPCR, ओके, बैंड 3, glycophorin, these are the example of intrinsic protein. Okay, ये example है extrinsic and intrinsic protein. So there is some proteins which are मैंने बताया कि अपने अपने एक डीपैथ के अकॉर्डिंग टू दीज प्रोटीन्स ये जो है वो पेनिट्रेट करते हैं लिपिड बायलेयर को। ओके, तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं मोनोटॉपिक, कुछ होती है पॉलीटॉपिक। ओके, मोनोटॉपिक प्रोटीन्स जो होती हैं, ये जो इंटेंसिव प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं जो सिंगल पास आउट करे। एक जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में पास आउट करे तो ये सिंगल पास प्रोटीन होती है, सिंगल पास प्रोटीन। ओके, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं 2 या 3 टाइम्स क्रॉस आउट कर जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को,
इसमें आते हैं जैसे कि ये प्रोटीन हो गए, ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं मल्टी पास प्रोटीन। मल्टी पास प्रोटीन। ओके, ये दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ये जो प्रोटीन्स है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ही होती हैं जो पास आउट करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ओके, अब आती हैं लिपिड के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हमने, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दो टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं साइटोक्रोम, स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन। ओके, देन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के एग्जांपल है जीपीसीआर, बैंड 3, ग्लाइकोफोरिन। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। ये सभी फ्लूइड मोज़ाइको मॉडल के अंदर ही होते हैं। जो हमने बताया ना दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड मोज़ाइको मॉडल के अंदर। ओके, कुछ इस टाइप से था ना मॉडल। अब हमने इनके बारे में पढ़ा था अभी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे लिपिड्स के लिए कौन कौन सी लिपिड्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी क्लास है लिपिड की जो प्रेजेंट होती है। ये तो पता है हमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब लिपिड के अंदर भी 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस ऑफ लिपिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है फॉस्फोलिपिड, सेकेंड होता है ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड होता है स्टीरोल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड और कॉमन लिपिड प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन लिपिड, कॉमन फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है, कॉमन फॉर्म ऑफ लिपिड कौन सी है? फॉस्फोलिपिड। ओके, तो आपकी लेवल का यही है कि कौन सी क्लास मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है, वो होती है फॉस्फोलिपिड। ओके, देन स्टीरोल्स में एग्जांपल हम बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो कोलेस्ट्रॉल है इट प्रोवाइड्स strength, sorry, flexibility, it provides flexibility. Okay, flexibility provide करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एंड थर्ड कंपोजिशन क्या थी? कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है मैंने आपको बताया 1 to 5% प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइनर फॉर्म के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट भी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। ठीक है, ये जो होता है ये सेल सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है कि जो भी सिग्नल्स आते हैं सेल के सरफेस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन पे ये प्रेजेंट होता है, वहां से ये कलेक्ट करेंगे सिग्नल्स, देन ये सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की डिटेल्स कि क्या क्या होता है। ठीक है, अभी आपका क्या रह गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक मिनट आई विल चेक। अभी जो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं मैंने बताया 2 टाइप की होती हैं,
फर्दर वही कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं सिंगली पास आउट करती हैं, 2 टाइम्स पास आउट करेंगी तो उन्हें मल्टी पास प्रोटीन्स बोलेंगे। इसी तरीके से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में एक पॉइंट रह गया। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है हमारी वो ऑल्सो बिहेव एज एंजाइम्स की तरह भी बिहेव करती हैं, प्रेमिएजेस की तरह भी बिहेव करती हैं, और कैरियर्स की तरह। ये जो कैरियर है वो एक्ट करते, ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। अब ये कैरियर होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, यूनिपोर्ट, मल्टीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, and the third one is that antipodes। ओके, ये 3 टाइप से होता है। यूनिपोर्ट मीन्स दैट जब कोई सेल है, सेल या कोई भी टिश्यू है, उसके अंदर कोई सिंगल मॉलिक्यूल पास आउट हो, एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल पास आउट हो, मीन्स दैट जैसे कि पोटेशियम आयंस का पास आउट हो रहा हो, सेल से आउटसाइड जा रहा हो, ठीक है, तो ये होता है यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है, तब 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन के अंदर पास आउट हो सेम टाइम पे। सो फॉर एग्जांपल जैसे पोटेशियम भी आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा है, सोडियम भी आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा है, दिस वी कॉल दैट सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड द एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होना सेम टाइम पे, जैसे कि पोटेशियम तो अंदर आ रहा हो और सोडियम बाहर जा रहे हो, तो ये होगा एंटीपोर्ट। ओके, तो दीज टाइप के ट्रांसपोर्ट कैरी आउट करते हैं ये कैरियर्स। ओके, तो ये पॉइंट रह रहा था आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। देन एक पॉइंट आपका रह गया स्टार्टिंग में, I was missed that this point is that जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी वो डायनामिक इन नेचर होती है, क्वेसी फ्लूइड इन नेचर होती है। ओके, जो क्वेसी फ्लूइड है इसका मतलब क्या होता है, ये पार्शियली सॉलिड होती है एंड पार्शियली फ्लूइड फॉर्म में होती है। ओके, सो इसका क्वेसिफॉर्म और डायनेमिक इन नेचर होती है। ओके, आई थिंक आपका यही था इसके अंदर। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस तो मैंने बता दिए, सेलेक्टिव होती है नेचर के अंदर, परमिएबल होती है किसके लिए, आयंस के लिए सेमी परमिएबल होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर की तरह एक्ट करती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल सिग्नलिंग में हेल्पफुल होती है, सेल रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करती है। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिक फंक्शंस होते हैं। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। And the remaining topics related to plasma membrane, related to I think transport system के बारे में मैं आपको next video में explain करूँगी। So guys, I think I'm trying my best that you will understand. Thank you so much. Please like and share and subscribe my channel.